ایران کی اسرائیل جنگ کے حوالے سے مذاکراتی ٹیم مسقط بھیجنے کی تردید۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، ایرانی مذاکراتی ٹیم مسقط بھیجنے کی اطلاعات درست ہیں نہیں ہیں۔ ایران نے کسی مذاکراتی ٹیم کو مسقط نہیں بھیجا۔ امریکہ ایران اسرائیل جنگ کی آگ بھڑکانے کا خواہش مند، 30 فوجی طیارے یورپ بھجوا دیے۔ طیاروں میں بیشتر فوجی ٹینکر طیارے شامل۔ امریکی بحری بیڑا ٹیمز میں مشرق وسطی کی جانب روانہ ہوا۔ انتہائی خفیہ اور ایمرجنسی حالات میں استعمال ہونے والا ڈومز ڈے طیارہ بھی واشنگٹن پہنچ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارہ ایٹمی دھماکوں اور برقی مقناطیسی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے تیار کیا گیا۔ انتہائی سنگین عالمی یا قومی بحرانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دنیا تباہی سے صرف چند ملی میٹر دور ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر روزانہ اسرائیلی حملے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو کھلی جارحیت قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے ایران اسرائیل جنگ رکوانے کا مطالبہ۔ کابینہ سے خطاب میں کہا، خطے کی موجودہ صورتحال عالمی امن کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان نے ہر سطح پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ غزہ میں ظالم ظلم کر رہے ہیں، عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ روسی صدر اور اماراتی ہم منصب محمد بن زاید میں ٹیلی فونک رابطہ۔ پیوٹن کا اسرائیل ایران تنازع فوری ختم کرنے پر زور ہے۔ روسی صدر نے ایک بار ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی ریباکوف کہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی فوجی مدد سے باز رہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی مداخلت سے مشرق وسطی کی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے ظلم میں ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ترک صدر اردوان کا دو ٹوک پیغام۔ کہا، ایران کو اپنی دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کی غنڈہ گردی کے خلاف ایران کا رد عمل جائز ہے۔ ایران کا دفاعی اقدام قانونی، فطری اور جائز ہے۔ نیتن خطے کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ غزہ میں بھی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ سچ بولنے پر امریکی فوج کا کرنل فارغ۔ پینٹاگون نے امریکی کرنل نیتھن مکورمک کو عہدے سے ہٹا دیا۔ امریکی کرنل نے سوشل میڈیا پر اسرائیلی بربریت کو بے نقاب کیا تھا۔ امریکہ غزہ میں نسل کشی پر اسرائیل کی معاونت کر رہا ہے۔ واشنگٹن اسرائیل کی پراکسی کی حیثیت اختیار کر چکا۔ واٹس ایپ ڈیٹا اسرائیل کو پہنچا رہا ہے۔ ایران کا دعویٰ، شہریوں سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کرنے کی اپیل۔ کہا، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ جیسی عالمی میسجنگ ایپس کو ہٹا دیں، ان کی نجی معلومات غیر محفوظ ہو سکتی ہیں۔ واٹس ایپ کو استعمال کرنا سیکیورٹی رسک بن سکتا ہے۔ اسرائیل نے انسانیت کو شرما دیا۔ غزہ میں خوراک مرکز پر ٹینک اور مشین گن سے فائرنگ۔ 70 فلسطینی شہید، 221 زخمی۔ متعدد کی حالت تشویشناک۔ شہداء اور زخمیوں کی منتقلی کے لیے ایمبولینس کی عدم دستیابی۔ شہریوں نے گاڑیوں، رکشوں اور گدھا گاڑیوں پر زخمیوں کو منتقل کیا۔ دفاع کو مضبوط بنانا اولین ترجیح ہے۔ صدر مملکت کا عزم۔ آصف علی زرداری کا پی او ایف واہ کا دورہ۔ چیئرمین پی او ایف لیفٹیننٹ جنرل طاہر حمید شاہ نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کی ملکی دفاع کو مضبوط بنانے میں پی او ایف کی تعریف۔ قومی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کسانوں کے نام مثبت پیغام۔ زرعی ٹیکس نہ لگانے کا اعلان۔ کابینہ سے خطاب میں کہا، آئی ایم ایف کو بتا دیا تھا زراعت پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے۔ خوشی ہے انہوں نے بات مان لی۔ وزیر اعظم کی دنیا میں پاکستان کا بہترین موقف پیش کرنے پر بلاول بھٹو کی بھی تعریف۔ بولے، چیئرمین پیپلز پارٹی کی قیادت میں سفارتی وفد نے بہترین کام کیا۔ حکومت نے سولر پینلز پر پیپلز پارٹی کا مطالبہ مان لیا۔ ٹیکس کی شرح 18 سے کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ۔ اسحاق ڈار نے کہا، سندھ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر تحفظات دور کیے جائیں گے۔ سندھ کی یونیورسٹیز کے فنڈز بڑھائے جائیں گے۔
डिजिटल सर्विस के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक है। पीपल्स पार्टी का सोलर पैनल्स पर टैक्स में कमी का खैर मकदम। सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा, हमारी ख्वाहिश थी सोलर पैनल्स पर टैक्स सिर्फ 5% तक होता। सोलराइजेशन से मुतल्लिक कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी दे दी। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को हल कर लिया गया। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत से अभी भी दरख्वास्त है, बजट के बाद कमेटी बनाई जाए। सोलराइजेशन को मज़ीद सस्ता करने के लिए हुकूमत एक पॉलिसी बनाए। उमर अयूब ने बजट के अदाद शुमार को गुमराह कुन करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने आवाम को करोड़ों रुपए के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाए। इस बजट से पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई आएगी। फाइनेंस के हवाले से कई गलतियां की गई हैं। हुकूमत बजट का ऐलान अवाम में करते वो उनका हश्र कर दें। अरबों रुपए के मामले पर चेयरमैन FPR ने गलती तस्लीम की। पीपल्स पार्टी संजीदा है, PTI से मिलकर जदोजहद करे। असद कैसर बोले, हमारे लीडर के केसेस 2 साल से चल रहे हैं, रिकॉर्ड अदालत पेश नहीं किया जा रहा, हीले बहाने किए जा रहे हैं। अदालत अगर इंसाफ नहीं देती तो हम कहाँ जाएं? बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। चेयरमैन सेनेट अभी तक प्रोडक्शन ऑर्डर पर। वजारत खजाना और एशियाई तरक्याती बैंक में $1 अरब फाइनेंसिंग मुआहिदा। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साल मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। एलामिये के मुताबिक ADB की पॉलिसी बेस्ड गारंटी से फाइनेंसिंग को जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तारीख आईनी जिम्मेदारी तर्क करने वाले जजेस को बरी नहीं करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में आदलिया से मुतालिक अहम फैसला। लिखा, तारीख उन लोगों को याद रखती है जो असूल के दिफा में मुस्बत कदम रहे और जजों का फ़र्ज़ है अपनी सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदेही करें। अंदर से तनकीद आयन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जजों को दयानतदारी और जुर्रत के साथ काम करना है। जजिस को अंदरूनी और बैरूनी तमाम तजावुज़ात का मुकाबला करना है। पाकपतन में दौरान डकैती डाकुओं का खातून से गैंगरेप। 4 डाकुओं ने शौहर और बेटे को कमरे में बंद करके ज्यादती का निशाना बनाया। DPO का मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा। मुकदमा दर्ज। कहा, मुलजिम का DNA टेस्ट कराया गया है। गैर मुल्की व्लॉगर महकमा मालियात के फौरी एक्शन के मौतरफ। सोशल मीडिया अकाउंट पर तारीफी वीडियो शेयर कर दी। बताया कि अताबाद झील में आलूदगी फैलाने की वीडियो पर बर वक्त कार्रवाई हुई। इंतजामिया ने लेक्सिस होटल को सील करके 15 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। होटल से सीवरेज का पानी झील में फेंका जा रहा था। बादलों के जाते ही शदीद गर्मी लौट आई। दादू, जैकबाबाद, नौकंडी में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नवाबशाह, सिब्बी और रोहड़ी 46, हैदराबाद, लाड़काना और सखर में 45 रहा। पेशावर, इस्लामाबाद 41, लाहौर 39 और कराची 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 19 और 20 जून के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दिया। फील्ड मार्शल के एजाज में कैबिनेट रूम में जोहराना दिया गया। अमरीकी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। मुलाकात के दौरान पाक अमरीकी ताल्लुकात मफसल तरीके से ज़र बहस आए। ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल का शुक्रिया, वो जंग की तरफ नहीं गए। अमेरिका की पाकिस्तान के साथ तिजारत मुआहिदे पर बातचीत जारी है। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल दौरा अमेरिका के दौरान मजीद अहम मुलाकातें भी करेंगे। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, आसिम मुनीर पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत है। उन्होंने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत, उसे पसंद करता हूँ। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई।
फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात, ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान, लिखा ये ऐसे वक्त में मुलाकात हुई जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया। हालिया 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत ने अमरीकी सफारती मुदाखलत की भी मुखालिफत की। ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करे, ट्रंप की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ता इंतहाई अहम हो सकता है, उससे पहले बड़ी कार्रवाई हो जाए। मुज़ाकरात के हवाले से अब बहुत देर हो चुकी। ईरान आज बात करना चाहता है, ये बातचीत 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं की? मालूम नहीं इसराइल और ईरान की जंग और कितना अरसा तक चलेगी। ईरान में इतनी दिफाई सलाहियत नहीं कि वह लंबी जंग लड़ सके। अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। ईरानी 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत पर ट्रंप इंतजामिया तकसीम, अमरीकी सदर की ज़ेर-ए-सदारत व्हाइट हाउस में आला सतह की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग। जंग में शमूलियत समेत अहम उमूर पर बातचीत। CNN के मुताबिक जंग का बराह रास्त हिस्सा बनने पर मुशीरों के दरमियान इख्तलाफ राय पाई गई। कई मुशीरों ने जंग को ट्रंप के विजन अमरीका फर्स्ट के खिलाफ करार दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ कहते हैं, फौज सदर ट्रंप के हर मुमकिन फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। हथियार नहीं डालेंगे, ईरानी सुप्रीम लीडर का ट्रंप को सख्त जवाब। सरकारी टीवी पर खिताब में आयतुल्लाह खामेनी ने कहा, अमेरिका ने हमला किया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत, बोले इसराइल को इसकी बड़ी गलती की सजा जरूर मिलेगी। ट्रंप की धमकी आमेज ज़बान ईरान को कबूल नहीं। जो ईरान की तारीख जानते हैं उन्हें मालूम है, हम धमकियों से नहीं झुकते। अमेरिका ने फौजी मुदाखलत की तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ईरानी कौम इज्जत के साथ जीना चाहती है, गुलामी कबूल नहीं। सेहोनी हुकूमत को अपने इक़दामात का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू नहीं भूलेंगे। मुसल्लत करदा जंग या आमन कबूल नहीं करेंगे। कौमी यकजहती से हर बहरान पर काबू पाएंगे, ईरानी सदर का आज़म मसूद पज़ेश्कियान ने काबीना को हिदायत जारी कर दी। कहा, अवाम साथ खड़े हों तो कोई खतरा मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें हर कदम कौमी इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाना होगा। ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कतर को ईरानी सदर पज़ेश्कियान का खत मौसूल। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर का पैगाम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को भेजा गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने खत के मंदरजात नहीं बताए। और ईरानी मिसाइलों की लहर सफाक इसराइल के लिए कहर बन गई। सेहोनी रियासत पर जदीद तरीन मिसाइल बरसा दिए। इसराइली शहरियों को शेल्टर्स में पनाह लेने के अहकामात। ईरान का 5वां इसराइली F-35 मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने तब्रेज़ पर परवाज करने वाले इसराइली जंगी तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन की वीडियो जारी कर दी।